I'm going to start the sharing. Okay, now today's topic is method of use of differentiation. It is a similar kind of, we have to calculate the inverse of Laplace transform. So method of differentiation is, this is a method, means you have to first differentiate the Laplace of inverse of that respective function. After differentiation, you have to apply the Laplace inverse, and at the end of the result you have to multiply that result by minus 1 by t. So this is the main motive or main method we have to apply. First we have to take the derivative of that respective functions, then you have to take the Laplace inverse of that respective functions, and later on at the end you have to multiply that function by minus 1 by t. Now see how, in which kind of a problems we have to apply the method of use of differentiation. So always remember, whenever a question will be like logarithmic, tan inverse, cot inverse, tan hyperbolic of inverse, tan hyperbolic of inverse are there, you have to apply this method only. Rest like the previous method which we saw, that is a convolutions, in that convolutions no questions belongs to such a kind of functions like logarithmic, tan inverse, cot inverse, hyperbolic or tan hyperbolic inverse. So always remember these things, because when where we have to apply such a kind of methods, you must aware about this, because directly you are not supposed to apply in any kind of a questions or any type of a problems. So please remember, whenever questions will come like logarithmic or function of log, tan inverse, cot inverse or inverse functions, and hyperbolic inverse means tan hyperbolic inverse, if such a functions will comes in a examinations or in a questions, like you have to calculate the Laplace inverse of that respective functions, you have to apply this method of use of differentiation. Always remember this formula: Laplace inverse of f of s, which is equal to minus 1 by t, Laplace inverse of f dash of s. So this is our main method. Sometime if in a questions it might be a, we have to apply that is a two derivative or double derivative, then this part will becomes minus 1 by t square and this will becomes f double dash of s. दो डेरिवेटिव अगर अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है तो ये माइनस 1 बाई टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स. अगर यहाँ पे आपको याद होगा, वहाँ पे उस प्रीवियस वाले पार्ट में, दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन. if t raised to n is there, t square, t cube kind, then we have to differentiate that function by d cube by ds cube, or we have to differentiate that function with the power of t raised to n, और n का पावर के बेस पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे, जितना पावर उतना बार डेरिवेटिव होता था. Similarly, if we apply 2 times derivative, then we have to multiply by minus 1 by t square. Please remember these things or these things in a mind, because it is important. Okay, now we'll move for the first questions. The first question is, एग्ज़ाम में ऐसा ही आएगा, फाइंड, और इंस्टेड ऑफ दिस आई एम जस्ट राइटिंग, दैट इज डायरेक्टली नहीं तो लेते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ log of 1 plus a square by s square, 1 plus a square by a square. So this is our main function is given. So f of s, which is equal to log of s square plus a square upon s square. I'm just applying this part, s square plus a square upon s square, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट के अंदर. सो a square plus a square upon a square. नाउ
all of you aware about that is what are the rules of logarithmic. So f of s, which is equal to log of s square plus a square minus log of s square. This is rule. Log a by b, which is equal to log of a minus log of b. Now we have to apply the derivative directly here. So while applying derivative, f dash of s, f of s becomes f dash of s. Derivative of this part will becomes 1 upon s square plus a square into derivative of this part with respect to s. So we have to write that is 2s minus derivative of this part is again 1 by s square. Derivative of s square will becomes 2s. Hope things are clear. Now next we have to simplify here at right hand side. So f dash of s, or I am applying that is a Laplace inverse of f dash of s, which is equal to, so 2 I am taking outside, so just applying that is Laplace inverse of s upon s square plus a square minus 1 by s. See, this s which is cancelled by this power, so remaining is only 1 by s, and s upon s square plus a square, as it is 2 here, 2 here, so we taken as a 2 as a common factor. Now we aware about that is what is a Laplace inverse of that respective function or this respective function. What is the Laplace inverse of this function? So Laplace inverse of f dash of s, which is equal to 2 into cos of 80 minus 1. This is our result, 2 of cos 80 minus 1, or Laplace inverse of this is our result. But whenever you apply that is a using of differentiations, so using of differentiations, final result will becomes what? This is we just calculated the derivative inverse of Laplace transform. किसका कैलकुलेट किया यहाँ पे? ये डेरिवेटिव वाले फंक्शन का, बट हमको किसका कैलकुलेट करना था? मेन फंक्शन का. सो आवर मेन फंक्शन इज दिस, so Laplace inverse of log of 1 plus a square by s square, और s square plus a square by s square भी लिख सकते हो, which is equal to, जैसे ही फंक्शन लिखोगे तो माइनस 1 बाई टी से आपको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 बाई टी 2 इंटू कॉस ऑफ 80 माइनस 1, और 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है अगर रिजल्ट में तो भी रख सकते हो, या 2 आउटसाइड माइनस 2 बाई टी. So this is our final result. We just calculated the Laplace inverse of that respective function, 1 plus log of 1 plus a square by s square. So hope things are clear. Just we simplified the terms. Later we just apply the logarithmic rule, log a by b means log a minus log b. Then we just taken the derivative of that both the functions. After differentiation we just simplify what we taken 2 as a common factor, and we just calculated the Laplace inverse of that respective function. So s upon s square plus a square minus 1 by s. So after calculations we aware about that is a method of use of differentiations. So at the end of the result we must have to multiply by minus 1 by t. Now we'll move ahead for the next question or next problem. Our next problem is log of s square plus a square upon under root of s plus b. So again a similar kind of a numerical is given. We have to just simplify the part, or we have to just apply the logarithmic rule.
and after logarithmic rule we must or we can simplify that part. Now see one by one or step by step. So the given result is f of s is equal to log of s square plus a square upon under root of s plus b. Just we have to simplify this part. So f of s is equal to log of s square plus a square minus log of under root of s plus b, or we can take this root outside, so it will becomes 1 by 2. F of s is equal to log of s square plus a square minus 1 by 2 as it is log of s plus b. रूट मीन्स रेस टू पावर हाफ होता है, वो हाफ को लॉग में आप फ्रंट में लिख सकते हो. देन वी हैव टू अप्लाई द डेरिवेटिव f dash of s which is equal to, I'm just writing this, or we can keep it one by one step, 1 upon s square plus a square into 2s minus 1 by 2 as it is, and derivative of log of this part is again 1 upon s plus b. फर्दर डेरिवेटिव इसका निकालोगे, b तो ज़ीरो है, कांस्टेंट है, बट s का 1 आएगा, तो वो लिखना है तो लिखो, नहीं तो kept as it is. Now the next part is Laplace inverse of f dash of s which is equal to, ये तो ऑलरेडी अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही फाइंड आउट किया है, तो आई एम जस्ट राइटिंग 2 इंटू कॉस ऑफ 80 to outside s upon s square plus a square, or if you want you can, we can take this one step here. So 2 into Laplace inverse of s upon s square plus a square minus 1 by 2 Laplace inverse of 1 upon s plus b. We just taken one more step, or we can write directly also. So Laplace inverse of f dash of s which is equal to 2 into cos of 80 minus 1 by 2 Laplace inverse of this function. Hope all of you are aware, whenever there is a s plus or s minus terms will be there, we have to apply the first shifting rule. So s plus b है तो फर्स्ट शिफ्टिंग था, इसके लिए प्लस b है तो वो एक्सपोनेंशियली कैसे आउट होएगा, that is you have to apply e raised to minus bt. Laplace inverse of remaining is 1 by s, प्लस b था इसलिए e raised to minus bt. Now 1 by s means 1, so Laplace inverse of f dash of s which is equal to 2 into cos of 80 minus 1 by 2 e raised to minus bt. This Laplace inverse of 1 by s will becomes 1. Now at the end we have to multiply by minus 1 by t. So Laplace inverse of f of s, f of s means this, minus 1 by t into whatever the Laplace inverse of f dash of s is there, 2 into cos of 80 minus 1 by 2 e raised to minus bt, to minus bt. So this is our final result, और if you want take 2 as a common factor अगर लेना है तो, या 1 by 2 common factor लेना है तो, बट उससे कोई आंसर में इफ़ेक्ट नहीं आएगा. अगर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे कि जो प्लस माइनस है वो प्लस होगा, प्लस वाला टर्म आपका माइनस होगा, बाकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है कोई, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इनका पॉसिबल नहीं है. Now we'll move ahead for the next numerical. Hope this question is very clear how we applied, that is a Laplace inverse by using method of a differentiation and all. Now
We'll move for the next question. Third numerical. The third numericals will be 2 tan hyperbolic inverse of s. This is our question. We have to calculate the Laplace inverse of it. So my f of s is clearly given, that is f of s 2 tan hyperbolic inverse of s, which is given as per the discussion, or as per the first year or hyperbolic functions, inverse of hyperbolic functions you learn in applied mathematics 1 or engineering mathematics 1. Hope you aware about, that is tan hyperbolic inverse of x. If I consider, or instead of x we have to consider as a z, then their formula is clearly given, that is 1 by 2 log of 1 plus z अपॉन 1 माइनस z. अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में देखते थे, हाइपरबोलिक फंक्शन जो चैप्टर था. tan hyperbolic inverse of z is equal to 1 by 2 log of 1 plus z upon 1 minus z. So just we have to apply the same formula here, because we are not going here, that is we have to directly apply the differentiation, and we have to calculate the Laplace inverse of that respective function. So f of s, which is equal to 2 as it is 1 by 2 tan hyperbolic inverse of s, means you have to apply same this part, log of 1 plus s upon 1 minus s. So this 2 get cancelled, so remaining is f of s, which is equal to, I'm just applying directly here, so log of 1 plus s minus log of 1 minus s. Now we just have to differentiate that result. So f dash of s, which is equal to 1 upon s plus 1, और 1 plus s लिखो, बात एक ही है, minus 1 upon 1 minus s, and derivative of this part you will getting minus 1. So please remember these things, because when there is a term is negative you must have to alert, but the term is positive you can write any like 1 plus s or s plus 1, no effect. We have to just apply this minus here, so it will becomes s minus 1. I can write this part. So f dash of s, which is equal to 1 upon s plus 1 minus 1 upon s minus 1. Now we have to apply the Laplace inverse here. So Laplace inverse of f dash of s, which is equal to Laplace inverse of 1 upon s plus 1 minus 1 upon s minus 1. Just you have to simplify this part, or take the Laplace inverse directly. So Laplace inverse of f dash of s, which is equal to e raised to t minus e raised to t. Always remember, if s के साथ plus 1 है, मतलब it is clearly e raised to minus t minus 1t. When s minus 1 is there, means e raised to plus 1t. और बाद में फिर से लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस करोगे तो 1 बाय एस का लाप्लास 1 होता है, ये सबको पता है. तो दिस इज़ अवर रिजल्ट ऑफ
लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस, और डेरिवेटिव करने के बाद जो लाप्लास इनवर्स आया. नाउ एट द एंड रिजल्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू -1/t e raised to minus t minus e raised to t as it is. So this is our main result. We just got sometime कोई बुक में ऐसा भी इसका आंसर है, तो don't get confused. We just apply here negative sign here, and I am just taking that is 2/t into e raised to t minus e raised to minus t divided by 2. कोई बुक में इसका आंसर ऐसा भी दिया गया है. So at the end that is 2/t into sine of hyperbolic of t. कहीं कहीं इसका रिज़ल्ट ऐसा भी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे और ये माइनस साइन अंदर कर दोगे, तो अगर हाइपरबोलिकली इसको एक्सपांशन दोगे साइन हाइपरबोलिक टी, देन यू विल गेटिंग ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई 2. वही टर्म हमने यहाँ पे लिखा है. तो बट यहाँ तक भी अगर आप रिज़ल्ट लिखते हो देन यू विल गेट फुल मार्क्स. बट कभी कभार प्रूफ वेरिफिकेशंस में ऐसे रिज़ल्ट पूछ सकते हैं कि शो दैट 2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक दिस. So that time please don't get confused, because some adjustments are possible in mathematics, so we can apply that type of adjustment. Now we'll move ahead for the next example. Next example पे आ रहा हूँ मैं. Hope this example is clear to everyone. Now we'll move ahead for the fourth one. Next example is s into log of s into log of s plus 1 s minus 1. So this is our example. We have to apply. So f of s which is given I can take this part s into log of s plus 1 upon s minus 1. So f of s which is equal to s into log of s plus 1 minus s into log of s minus 1. because s मल्टीप्लाई log a by b का रूल अप्लाई किया, log a minus log b, so s तो मल्टीप्लाई होना ही है. we have to apply here multiplication by t raised to n वाला concept. sorry, multiplication by t raised to n means product rule of the, that is derivative. so f dash of s f dash of s, when we have to apply u into v rule, mean product rule. so first as it is derivative of log will become, so I'm just writing s plus 1 first into derivative of second plus second as it is s plus 1 into derivative of first. so s का derivative 1 हो जाएगा. Similarly you have to apply here first into derivative of second, so s upon, or instead of this you must have to take minus sign outside, नहीं तो बाद में confusion होगा.
तो s into derivative of this part will becomes s minus 1 then plus log of s minus 1 as it is and derivative of s 1 हो गया. So this is we just calculated the derivative of that respective functions. लेकिन अगर अच्छी तरह से आप ध्यान दोगे तो इसके लाप्लास इन्वर्स हमको पता है, थोड़ा सा ध्यान दो अच्छी तरह से. तो इसके लाप्लास इन्वर्स आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसके लाप्लास इन्वर्स के लिए आपको एक फर्दर मोर डेरिवेटिव करेगा. तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेपरेशन कर रहा हूँ. एफ डैश ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 प्लस log ऑफ s प्लस 1 माइनस log ऑफ s माइनस 1. होप थिंग्स आर क्लियर. जिसका डेरिवेटिव निकल गया उसको मैंने एक साइड रख दिया है, और जिसका डेरिवेटिव अभी नहीं निकला है मीन्स दिस लॉगरिथमिक वाले पार्ट, उनको एक अलग साइड रखा है. इसका मतलब बताने का ये है कि यहाँ पे इसका लाप्लास इन्वर्स डायरेक्टली होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका लाप्लास इन्वर्स निकालने जाऊँगा तो इधर मुझे फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन अलाउ करना होगा. तो एट द एंड रिज़ल्ट लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, जैसे हम लोग लिखेंगे अभी 1 मिनट तो आपको समझ में आएगा. तो आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर सेपरेटिंग दिस पार्ट. लेट एफ डैश ऑफ एस f1 of dash of s which is equal to s upon s plus 1 minus s upon s minus 1. मैंने इसको सेपरेट कर दिया है अच्छी तरह, सेपरेट कम्प्लीटली कर, क्योंकि इधर मुझे फर्दर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करना है. ठीक है. एंड दिस पार्ट आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग एज, देखो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है. इसका डेरिवेटिव एक बार हो चुका है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये चीज़ आप थोड़ी सी से ध्यान रखना कि हम लोग इस पार्ट को डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं. तो जब रिज़ल्ट में हम लोग लिखेंगे इस पार्ट को, तो रिज़ल्ट में जब हम इस पार्ट को लिखेंगे तो इस पार्ट को लिखते वक्त हमको -1/t² से मल्टीप्लाई करना होगा इस पार्ट के लिए. इस पार्ट के लिए हमको -1/t² से मल्टीप्लाई, और इस पार्ट के लिए जब हम रिज़ल्ट लिखेंगे तो सिर्फ हम -1/t के लिए करेंगे. ये चीज़ ध्यान में रहे. तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस पार्ट इज़ f2 डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू log ऑफ s प्लस 1. एक बार डेरिवेटिव इस पार्ट का हो चुका है, माइनस log ऑफ s माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट देखो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये पार्ट डेरिवेटिव हो चुका है इसके साथ ही वाले पार्ट का. तो ये भी हमको काउंट करना है कि इस पार्ट के डेरिवेटिव हुए हैं. इसके लिए मैंने f2 डैश ऑफ लिखा है, नहीं तो सिर्फ f2 अगर लिखता बाई चांस, तो आप अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर उसको लास्ट मोमेंट में हमको ऐसा होता कि हमने इसके साथ मतलब एक ही डेरिवेटिव किया लेकिन -1/t² क्यों लिखा है. तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग रहे आपके लिए. इसको हमको डेरिवेटिव नहीं करना है अभी, इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ लाप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करना है. सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1 ऑफ डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू this part I am just getting, this is my equation number 1, f1 dash of s which is equal to, डायरेक्टली इसका आ जाएगा e raised to -t माइनस e raised to t. अभी ऊपर आपने ऐसा ही देखा था s अपॉन s प्लस s अपॉन s प्लस 1 है ना. तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमसे, इस पार्ट को ऐसा नहीं लिख सकते हो आप. समथिंग वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, क्योंकि डायरेक्टली a प्लस बी और a माइनस बी जैसा टर्म दिख रहा है हमको यहाँ पे, और अगर सिंप्लीफाई अगर आप करोगे यहाँ पे तो यू विल गेटिंग समथिंग व्हाट s मिलेगा आपको. देखो या लाप्लास इन्वर्स ऑफ s² माइनस s माइनस
एस स्क्वायर एंड माइनस एस अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, सो एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. Just we applied the cross multiplications and डेरिवेटिव इसका फर्दर लोगे तो f2 डबल डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू f2 डबल डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू log ऑफ s प्लस वन माइनस, तो ये तो डायरेक्टली एकदम सिंपल आएगा 1 बाय s प्लस वन माइनस 1 बाय s माइनस वन. फर्दर कोई डेरिवेटिव नहीं, कुछ नहीं. यहाँ पे भी लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे हम लोग. सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1 डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू, देखो ये पार्ट और ये पार्ट आपका कैंसलेशन चले जाता है, ये पार्ट और ये पार्ट. -2s मिलता है. अगर मैं -2 को बाहर रख दूँ, सपोज इफ आई एम टेकिंग -2 आउटसाइड, रिमेनिंग इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर ले लो. तो ये इसका लाप्लास इन्वर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 80 अगर याद होगा, कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास क्या होता था, s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. यहाँ पे a के जगह पे 1 है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ f2 डबल डैश ऑफ s, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 1. डायरेक्टली इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि s प्लस 1 ऊपर s नहीं है. यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर भी s प्रेजेंट था, इसकी वजह से. ऊपर s है तो ऊपर s प्लस 1 लेके आओ, यहाँ पे s माइनस 1 लेके आओ, तो वो थोड़ा और लेंदी आपका चले जाता पार्ट. बट यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली a प्लस बी a माइनस बी था, तो हमको हाइपर कॉस हाइपरबोलिक वाला टर्म डायरेक्ट मिलता है. इसके लिए हमने अप्लाई किया माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1 डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू -2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t. अगर देखना है तो लाप्लास इन्वर्स इधर आएगा तो लाप्लास हो जाएगा. लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t क्या आएगा, यही टर्म आएगा, -2 kept as it is. एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ f2 डबल डैश ऑफ s विच इज़ इक्वल टू e रेस टू t माइनस t बिकॉज ऑफ s प्लस 1 है, माइनस e रेस टू माइनस t, सॉरी e raised to t. s minus 1 is there, then you have to apply e raised to t. s plus 1 is there, so e raised to minus t according to the first shifting. तो ये पार्ट हमको मिल गया. हम इसमें अगर इसका वैल्यूज़ रख देते हैं और लाप्लास इन्वर्स का रूल अप्लाई करते हैं, लाप्लास इन्वर्स तो ऑलरेडी हमने अप्लाई किया ही है, लेकिन इसका हमने डबल डेरिवेटिव निकाला है और इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला है. तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट में यहाँ पे रखूँगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s विच इज़ इक्वल टू, हमारा रूल था -1 बाई टी इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ s था. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अच्छी तरह से दो कि जिसका सिंगल डेरिवेटिव हुआ है उसको -1 बाई टी से मल्टीप्लाई होने वाला है, और जिसका डबल डेरिवेटिव हुआ है उसका -1 बाई टी स्क्वायर से आपको करना होगा. ये चीज़ आप अच्छी तरह से माइंड में सेट रखो. लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s विच इज़ इक्वल टू -1 बाई टी, f1 ऑफ डैश ऑफ s में ये पार्ट आपका आ जाता है. सो यू हैव टू राइट एज इट इज़ -2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t. लेकिन जैसे इस पार्ट के लिए मैं आऊँगा तो मैं बीच में एक प्लस साइन लूँगा, क्योंकि दोनों टर्म अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो दोनों टर्म्स ऐड में है इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसी के बेसिस पे मैं जाऊँगा. यहाँ पे लगेगा तो लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस -1 बाई टी स्क्वायर इंटू, जैसे इधर लाप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ s है, वैसे ही उसके लिए फॉर्मूला आता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ f डबल डैश ऑफ s. तो वो आपने क्या कैलकुलेट किया, ये पार्ट आपका है. तो यू हैव टू राइट एज इट इज़ e रेस टू माइनस टी माइनस e रेस टू टी.
सो ये आपको रिज़ल्ट मिलता है, माइनस माइनस कैंसिल करके आप लिख सकते हो 2/t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टी प्लस you can write as it is plus 1/t square into e raised to t माइनस ई रेस टू माइनस टी। मैंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके लिए यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये आपको रिजल्ट डालता है, जैसे प्रीवियस में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके रिजल्ट लाए थे वैसा ला सकते हो रिजल्ट, बट वो कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो यू विल गेटिंग 2/t इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ टी प्लस 2/t स्क्वायर इंटू दिस पार्ट यू विल गेटिंग साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी। अभी ऊपर हमने किया था साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी। तो ये रिज़ल्ट आपको मिलता है, या ये रिज़ल्ट भी आप अगर लिखते हो तो भी 100% एक्सेप्टेबल है, कोई भी रॉन्ग नहीं देगा उस रिज़ल्ट को। सो दिस इज़ योर रिज़ल्ट। सॉरी, one mistake was there from my side. It is minus 1/t, but whenever we have to write a second derivative, then minus 1/t into minus 1/t it will becomes a plus 1/t. So just little bit of confusion might be there. So see, always remember ये माइनस, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस है तो सेकेंड जब डेरिवेटिव का आप पार्ट लिखोगे तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर फर्स्ट, because according to my assumption that is it is a minus 1/t square only, but might be no, it's fine, it's minus 1/t square is given, but again I will check and will tell you in upcoming lectures, because according to the Kumbhochkar and the formula which is given, it is minus 1/t square into Laplace inverse of f double dash of f double dash of s is given. But I will check again, because I have little bit a doubt in this. Might be it is 1/t square or minus 1/t square whenever we have to calculate the double derivative. सिंगल डेरिवेटिव में कोई इशू नहीं है, माइनस 1/t है, बट जब भी डबल डेरिवेटिव है तो उसका फॉर्मूला ऐसा ही है, लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s which is equal to minus 1/t square into लाप्लास इनवर्स ऑफ f डबल डैश ऑफ s। बट मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि 1/t स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माइनस 1/t है तो ये माइनस 1/t स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्ट से फॉर्मूला अप्लाई करें तो शायद इसमें माइनस 1/t स्क्वायर की जगह पे 1/t स्क्वायर होगा। बट एनीवे, you just remember this, how can we solve later I will explain whether it is minus 1। अगर ये माइनस 1/t स्क्वायर नहीं होता है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ये माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ से आपको माइनस साइन कॉमन लेना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर ये माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ये माइनस साइन आपको कॉमन लेना होगा, यहाँ से आपका माइनस साइन कॉमन होने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, बस बाकी कोई रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। बट फर्स्ट लेट मी क्लियर, मुझे एक दो रेफरेंस बुक देखना होगा कि वेदर इट इज़ माइनस 1/t स्क्वायर और 1/t स्क्वायर। बट द प्रोसीजर इज़ केप्ट एज इट इज़। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको आंसर नहीं आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव में, सो आप एज इट इज़ अप्लाई करोगे। नेक्स्ट फर्दर डेरिवेटिव के लिए आप जाओगे log s प्लस 1 माइनस log s माइनस 1 के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो वो रूल हमेशा अच्छी तरह से ध्यान में रखो, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं तो हम लोग एक ही डेरिवेटिव अप्लाई करके रेस्ट रिज़ल्ट को डायरेक्टली माइनस 1/t से मल्टीप्लाई करते हैं। फंक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ s वेरिएबल ओनली, दैट्स इट। सब फंक्शन अल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाने चाहिए, और हर एक फंक्शन का
प्रॉपर लाप्लास इन्वर्स कैलकुलेट होना चाहिए। अब लॉग का लाप्लास इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप, लॉग का लाप्लास इन्वर्स पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट, इसलिए इधर डिफरेंशिएशन फर्दर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार पेपर जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स ऐसे ही छोड़ दिए हैं इस पार्ट को, और हेंस प्रूफ करके या फिर हेंस दिस इज़ द जनरल रिज़ल्ट और गिवन सॉल्यूशन ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो नहीं, मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताया है कि जब तक प्रॉपर लाप्लास नहीं आ जाता है तब तक आपको एडजस्ट करो, डिफरेंशिएशन करो, कुछ भी करो, तब तक आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन क्यों किया, हम डायरेक्ट पहले गए, लेकिन यहाँ पे जैसे ही नज़र गया कि एस है, यहाँ पे भी एस है, तो एस प्लस वन एस माइनस वन यहाँ पे भी आना चाहिए। बट वो करने को कर सकते हो, बट इट दैट पार्ट इज़ कम्प्लीटली अ लेंदी पार्ट। एस प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा यहाँ पे एस माइनस वन प्लस वन करना पड़ेगा, फर्दर सेपरेशन अब हो जाता है वहाँ पे। सेपरेशन होने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन के उस पे जाना पड़ता। तो दैट इंस्टेड ऑफ दैट सिंप्लीफिकेशन, that cross multiplication simplification is quite easy, we just applied that cross multiplication। क्यों डायरेक्टली क्लिक हो गया, क्योंकि इधर a प्लस बी है और इधर a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर कॉस हाइपरबोलिक डायरेक्टली दे रहा है, डिनोमिनेटर कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक डायरेक्टली दे रहा है। अब न्यूमरेटर देखना है कि अगर वेरिएबल आ रहा है वो न्यूमरेटर में तो 100% वो कॉस हाइपरबोलिक है। अगर वेरिएबल नहीं आ रहा है, एस स्क्वायर वगैरह कुछ बड़ा टर्म आ रहा है, तो इट माइट बी अ डिफ़िकल्ट, हमारे लिए आगे डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट यहाँ पे आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस के टर्म है, और एस इंटू एस एस स्क्वायर माइनस एस इंटू एस स्क्वायर, ये टर्म्स आपके कैंसिल हो जा रहे हैं, मतलब सिर्फ एस बच रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई किया, इधर फर्दर डिफ्रेंशिएशन किया है, और उसके बाद डायरेक्टली इधर एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया है, फर्स्ट शिफ्टिंग वाला रिवर्स प्रोसेस। लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग है और इन्वर्स ऑफ लाप्लास में वही उसका रिवर्स प्रोसेस चले जाता है। एस प्लस में भी यहाँ पे एस वगैरह नहीं है न्यूमरेटर में, इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया है। तो दिस इज़ द जनरल रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ विल मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और होपफुली दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन for today's. And one more thing, that is tomorrow we have one more tutorial. Tomorrow I am going to take one more tutorial, and please one more thing, this time there will be no email you have to enter and all. Last time actually I was not arranged, but this time I am going to arrange the things, so please be ready. The topics will be division by t, sorry, not division by t, sorry, my mistake. The topics are Laplace transform of integral, convolution theorem, and this method, uses of differentiation. Laplace transform of integral from the first topic, Laplace transform of integral, convolution theorem, and this is uses of differentiation in inverse of Laplace transform. Now last question I am just taking, and hopefully tomorrow I will show you the result, how much score you are getting in your respective tutorials or previous tutorial. Now the next question is cos of AS, sorry, not cos, cot inverse of AS. This is a question we have to just calculate. So very easy question, f of s cot inverse of AS, I am going to ask a question from anyone randomly. I will take a name. Harsh Somaya, please on your mic. Harsh, or mic is. Yes, sir. Yes, sir. Tell me the derivative of cot inverse of x or cot inverse of t s, जो भी वेरिएबल लेना है आपको. What is the derivative of cot inverse of x? Derivative of cot inverse is minus 1 by x square plus 1.
एक्स स्क्वायर प्लस वन. Okay, now off your mic. Any that is Ayush. Ayush, on your mic. Yes, sir. राइट बोला है फॉर्मूला उसने, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव. पक्का? हाँ सर. ओके, ऑफ योर माइक. नो. जय जय भगत, ऑन योर माइक. Yes, sir. फॉर्मूला राइट है. -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन. Yes, sir. पक्का? Okay, fine. Now off your mic. Now I think the formula is proper. Derivative of cot inverse of x is -1 by 1 plus x square or x square plus 1. If tan inverse of x is there, then you have to apply that is 1 by x square plus 1 or 1 plus x square. So further we have to apply that is that here also. So I'm just taking the derivative f dash of s, which is equal to, that is -1 upon 1 plus a square s square into d by ds derivative of as. Hope these things are clear in your mind. We just applied the Laplace derivative of cot inverse of as, और cot inverse of x का फॉर्मूला यहाँ पे x था तो डायरेक्टली 1 आ जाता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं. लेकिन यहाँ पे फर्दर as है तो उसको हमको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है. Now we have to take the derivative of as, so you will getting that is a only. So f dash of s, which is equal to minus a upon a square or 1 plus a square, kept as it is, 1 plus a square s square as it is. आपने तो अब तक ऐसा फंक्शन नहीं देखा. डिनोमिनेटर में एक चीज़ देखा था कि एस स्क्वायर प्लस समथिंग है. एस स्क्वायर के साथ तो कोई टर्म है नहीं, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एज a square outside. So while taking a square outside, remaining terms is what, f dash of s minus a as it is, और माइनस ए उधर ही रखो जहाँ पे है. सो 1 बाय ए स्क्वायर मैं निकाल दिया बाहर इस पार्ट को. मेरा टर्म बचा यहाँ पे क्या, माइनस ए अपॉन, मैं यहाँ से ये टर्म को पहले लिखता हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर आउट हो गया तो ये एस स्क्वायर बच गया, प्लस डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर आपने कॉमन निकाला है तो होप 1 बाय ए स्क्वायर यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा. होप थिंग्स आर क्लियर. अगर ये ए स्क्वायर अंदर फिर से मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर गेट कैंसल, सो दिस टू पार्ट्स गेट कैंसल, अगेन यू विल गेटिंग 1. तो ये पार्ट हमने वर्क किया है यहाँ पे. नाउ होपफुली दिस ए इज़ कैंसल्ड बाय दिस स्क्वायर, और माइनस आउटसाइड में रखता हूँ. सो एफ डैश ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू minus of, I'm just writing this step, so hope you will understand. अगर नहीं मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस, लाप्लास इनवर्स ऑफ, और आई एम जस्ट टेकिंग माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये ए को मैंने इस पावर से कैंसिल किया, ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 बाय ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर. राइट है ये पार्ट, में ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं अलाउड है. देखिए ये ए कैंसिल हो गया तो ये बचता है आपका 1 बाय ए, माइनस 1 बाय ए जैसे, तो माइनस साइन अगर बाहर रखूँ तो वो 1 बाय ए मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ. अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज़ पॉसिबल अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट को मैं फिर से इधर लाऊंगा तो ये 1 बाय ए ही हो जाएगा. So please try to understand.
Now again I am going to ask a question. Randomly I will take a name, so you can answer. Ashwin Wagela. अश्विन, यस सर। ये बराबर लिखा है मैंने स्टेप, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, देन 1/a को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया है, माइनस साइन तो बाहर रखा है। इज सर इट नहीं है पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है? ओके क्योंकि सर वो ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है चलेगा। मैं आगे और एक दो जन से पूछता हूँ। नाउ ऑफ योर माइक प्लीज़। आकाश पांडे। आकाश पांडे, ऑन योर माइक। Akash Pandey, I'm audible or not? Please on your mic. Okay, I think you are not mic not working. Okay, not no issue. Okay, we have to ask. Yash Devani. Is it possible? 1/a square, that a is cancelled by that power, and I just written that is 1/a upon a square plus a 1/a square. सर हेलो। Yes, yes, go ahead. सर वो पॉसिबल होगा सर, वो रिवर्स किया हमने। अच्छा पॉसिबल होगा। हाँ सर, और नीचे ओके ओके, ठीक है फाइन। आई एम गोइंग टू आस्क वन मोर थिंग्स, दैट इज वन मोर स्टूडेंट, दैट इज विराज भूटानी. दिस स्टेप इज प्रॉपर और नॉट? Yes, sir. Okay. Now I'm going to ask a question. Shivang Trivedi, what is the Laplace inverse of this? अगर ये फाइन है, राइट हो गया, हम लोग ने बोल दिया राइट है, तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा? Laplace inverse of 1/a upon a square plus 1/a square. Hello, sir. Yes, yes. Sir, can you please repeat the question? See, I'm just asking, that is, what is a Laplace inverse of this function 1/a upon a square plus 1/a square? Sine Yes. 1 by t sine t by a. Just a second. Laplace inverse of f dash of s, which is equal to minus sine of T by a. t by a. Fine. Yes, sir. Okay, thank you. So hope things are clear to everyone. That is, like sine Laplace of sine at is a upon a square plus a square. Similarly, if there is a t by a or 1/a into t is there, then their Laplace अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/a upon a square plus 1/a square रहेगा, या 1 square by a square रहेगा. Now the final result will becomes Laplace inverse of f of s, which is equal to minus 1 by t into minus sine of t by a. So finally you will getting sine of t by a by t. So this is our result. अगर इसको सॉल्व करने जाओगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप, तो पहले इसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, फिर डिवीजन बाय टी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी.
और वो सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में ऐसे रिज़ल्ट हमने लाए थे, अगर याद होगा आपको, तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग, उसको हम लोग कॉट इनवर्स लिखे थे। ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो ये लाप्लास इनवर्स था, उसको हमने लाप्लास में कन्वर्ट किया है। सिमिलरली लाप्लास को आप लाप्लास इनवर्स में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। टी फंक्शन को, टी वेरिएबल को एस वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे एस को हम लोग वापस से टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द जस्ट रिजल्ट, वी जस्ट अप्लाइड द डेरिवेटिव। आफ्टर डेरिवेटिव जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशंस और एडजस्टमेंट, and after adjustment you just have to calculate the Laplace inverse of that respective function. So we just got minus sin t by a, and at the end result, that is you must aware, that is minus 1 by t into minus sin t by a, sin t by a by t. So this is just a result of cot inverse of as. In next lecture tomorrow we have a tutorial on the topic of Laplace transform of integral, convolutions. ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट दिस टॉपिक। ये टॉपिक पे नहीं करते हैं हम लोग ट्यूटोरियल, क्योंकि 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टेक मोर एग्जांपल्स, बट बोथ 2 टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम, देयर इज़ अ ट्यूटोरियल। तो बी प्रिपेयर फॉर बोथ द टॉपिक्स। ऑलरेडी मैंने 10 एग्जाम्पल्स सॉल्व कराए हैं कन्वोल्यूशंस में, वो एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देखो, कॉन्सेप्ट समझो कि क्या किया गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने क्वेश्चन कराया है एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू पावर 2 का, तो मैं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछूं या ट्यूटोरियल में क्वेश्चन पूछूं एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और रेस टू पावर 2, तो ए की जगह पे 2 स्क्वायर अगर चेंजेस हो रहा है तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर सच ए काइंड ऑफ क्वेश्चंस। होप थिंग्स आर क्लियर यूजिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन लाप्लास इनवर्स। If anyone having any doubts you can ask, or just wait, I am going to taking the attendance, so please don't go. अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के में देखेंगे। कल ट्यूटोरियल है 10 to 11, so be prepared for that. Okay, so thank you. अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Now you can left if you want.